No? Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. Wa ala alika ashabika ya Nur Allah. Sallallahu ta'ala alayka wa sallam. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आपका एसडीआई उम्मीद के वीकली वेबिनार में मैं इरफान मेघानी और मेरे साथ डॉक्टर यामीन थारा तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। A warm welcome to all of you to our weekly webinar in which we cover various topics for our students, professionals and business community in the areas of education and career development. Today's topic is very interesting topic because काफी टाइम आप लोग सोचते होंगे कि ये 24 आवर्स मेरे लिए कम पड़ रहे हैं, मैं कुछ चीजें कंप्लीट कर नहीं पा रहा हूँ, मैं प्लान करता हूँ लेकिन पर ये चीजें होती नहीं है। या काफी टाइम ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट चीजें हमें करना होता है लेकिन पर हम सोचते हैं कि ये चलो कल कर लेंगे और फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। तो इसीलिए ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसीलिए एसडीआई की टीम हाजिर है टू एक्सप्लेन टू यू स्किल्स ऑन टाइम मैनेजमेंट। आज इंशाल्लाह हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे ताकि आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। एंड बिफोर आई डू दैट, लेट मी गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस अबाउट एसडीआई टीम उम्मीद। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, एंड हियर इट इज। सो अबाउट एसडीआई टीम उम्मीद, as you know, SDI Team Umeed has been working in various fields. We do career counseling. हम बच्चों के लिए career counseling करते हैं, हम trainings provide करते हैं बच्चों को in different areas. In fact, various skill development trainings जैसे कि Excel हो गया, Python हो गया, ये सारी trainings हम हमारे टीम के थ्रू provide करते हैं. Plus we also do medical camps. We did seminars on COVID, and also we had helpline on COVID, wherein we connected people to different doctors to help them on various issues. इसके अलावा हमारी जो एसडीआई की टीम है, एसडीआई उम्मीद की टीम है, ये स्कॉलरशिप कैंप्स भी कंडक्ट करती है ताकि बच्चों को, जो नीडी बच्चे हैं, उनको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो थ्रू दी स्कॉलरशिप कैंप्स मिले। और ये सब हम जो करते हैं, दिस वी आर डूइंग अंडर द स्पिरिचुअल लीडरशिप of our Daiye Kabir, Amir Sunni Dawat Islami, Maulana Shakir Nuri Sahab Qibla, and under the guidance of Rukn Shura, Sunni Dawat Islami, जिनको हम प्यार से PQRS कहते हैं, प्यारे कारी रिजवान साहब Qibla, who is the mentor and guide for all of us. And before that, let me just give you a disclaimer and read it properly. The webinar and the consequent video is made solely for educational purpose. ये जो भी हम बना रहे हैं ये आपके education purpose के लिए है. We don't commercialize it. We don't take any advertisements. We do not intend to harm, injure, defame, disrespect or any person. The contents and video are solely based on the research and case studies gathered by our speakers from various multiple sources, including books, internet and videos. The opinions and views expressed in this webinar and video is solely of the speakers. I repeat, it is solely of the speakers, and SDI in no way takes responsibility or liability for the accuracy, completeness, reliability, and legality of the information presented or contained in the webinar and video. Viewers' discretion is advised. So after this, some important instructions. I know you all have been waiting for this webinar. So please make notes because आज के वेबिनार में हम आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, प्लस हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे बिकॉज ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, अनलेस यू प्रैक्टिस इट यू विल नॉट बी एबल टू मास्टर इट. ओके, सो मेक नोट्स. सो वी विल टेल यू टू डू सर्टेन थिंग्स आफ्टर द वेबिनार. टेक नोट्स अबाउट दैट. अगर आप अपना ये वेबिनार मोबाइल में देख रहे हैं तो प्लीज अपने मोबाइल को इस तरीके से लैंडस्केप मोड में करिए सो यू कैन सी द फुल प्रेजेंटेशन. And most importantly, please ask questions.
We are live on YouTube, SDI channel, and we are also live on Facebook, Umid's web page. Our moderators are there on the social media handles. Please put your questions in the comment section, and our moderators will bring it to us. And inshallah, we'll try to answer all your questions. So before I go to the next slide, let me welcome my co-host, Dr. Advocate Yamin Thara. Dr. Saab, Assalamu Alaikum. Any opening remarks from your side, Dr. Saab? As you have made everything, a request the viewers के जब भी आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे कर सकते हो, आप फेसबुक सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. वी बोथ विल इंशाल्लाह ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. Super. Okay. So rule number 1 in time management, it says set the table. So let me explain to you ये rule का मतलब क्या है. Okay. काफी टाइम बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है. टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ में या हम अपने कैरियर में या हम अपने बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट फुल्ली. अधूरा कर दिया, थोड़ा सा कर दिया लेकिन बट वी डोंट नो वेदर वी हैव एक्चुअली मेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट और नॉट. So clarity is not there. Okay, so first rule of time management is you should have the clarity कि मैं क्या करना चाहता हूं. एक बार आपकी clarity of thoughts है, you know that what I want to achieve, what is my goal, what is my objective. The more clear you are, the less you will be able to deviate. जितना आप clear होगे उतना आपका ध्यान कम भटकेगा. तो सबसे पहला सेट द टेबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्लैरिटी रखिए. आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है एज पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, एज पार्ट ऑफ द टास्क, और इवन एज पार्ट ऑफ योर कैरियर गोल. इवन फॉर स्टूडेंट्स, आपकी स्टडीज को लेके भी कि आपको क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट्स में आप वीक हो. सो क्लैरिटी आपकी बहुत जरूरी है. सेकेंड, जो भी आप करना चाहते हो आप प्लीज उसे एक पीस ऑफ पेपर पे नोट करिए. एंड ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ ये मैं मेरे प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. आई हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट नाउ मोर देन 20 years एंड मैंने काफी लोगों से बात किया हो स्पेसिफिकली ऑन टाइम मैनेजमेंट. एंड व्हेन आई इंटरेक्ट विद दीस इंटेलेक्चुअल्स आई ट्राई टू मेक नोट ऑफ थिंग्स दैट दे डू. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दे ऑलवेज राइट डाउन कि उनको क्या करना है. Third is writing down is not itself important. You need to set a timeline. आपको एक deadline या timeline भी define करनी है. कि for example, I'll give you my personal example. जैसे मुझे एक कोर्स करना था सीमा CGMA, okay, and I wanted to do something more. As you know, I'm also a chartered accountant, but I wanted to do one more professional course. So I said, okay, I will do this course, and my timeline is, let's say, 2 years. So I set a timeline. Okay. So you also set a timeline. It can be short term, long term. जो भी आप करना चाहते हो उस चीज का एक टाइमलाइन रखिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज क्या आप एक लिस्ट बनाइए कि अगर मुझे ये चीज अचीव करनी है तो व्हाट ऑल आई शुड डू, ABCD. So you know, okay, that for example, if you have to climb up to this climb up, अगर आपको ऊपर climb करना है, you have to climb through a ladder, so you have to have steps. You cannot jump from 1 to the 7th step. You have to make 1 by 1 steps, right? Then इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करिए. Okay, what should I do first? What should I do second? What should I do third? Okay. And most important, जहां पे 80% of the people fail is वो अपनी लिस्ट बना लेंगे and they will spend a lot of time on making the list, but the most important step है on taking action वो करते नहीं है. जैसे हमने देखा है कि लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बना लेते हैं and then that resolution is just sitting there in the resolution book, right? Because they don't take an action. So take action. Taking action immediately is very important because that sets the tone. आपका जो माइंड है, your brain is tuned to action.
अगर आपने कोई चीज का एक्शन लिया है, then works. Okay, after this I have to do that. After this I have to do next. Okay, so taking action is very important. And last is take small steps every day. अगर आपने कुछ प्लान किया है तो do it every day, because again it is nothing else but training your brain. Once you do things every day, first day, second day, third day, fifth day, automatically it will come to your mind. Automatically you will be able to plan for it because your brain is tuned to that. Okay, so setting the table is very important. First step in time management. यामीन सर, जज़ाकल्लाह इरफान भाई, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाउ टू प्रॉपर्ली प्लान इट, राइट? सो प्लानिंग एवरी डे इज इन एडवांस द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. जब भी आपको कोई चीज को एग्जीक्यूट करना है, यू नीड अ प्रॉपर प्लान करना है, यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग, राइट? एंड उसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया जा रहा है, दैट इज 6P फॉर्मूला. इफ यू वांट टू राइट डाउन, इफ यू कैन राइट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि ये आपका करियर, आपके लाइफ का थिंकिंग एबिलिटी चेंज कर सकता है. आप प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो बेस्ड ओनली ऑन दिस 6P फॉर्मूला, दैट इज प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस. ये 6P को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो और इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपने लाइफ में, तो आप कह सकते हो आप प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो अपने लाइफ में, तो आप कह सकते हो आप प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली कर सकते हो. प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, प्लानिंग इज द क्रूशियल पार्ट. जैसे कि आप सबको, हम सबको एक चीज पता है कि इवन अ सिंगल मिनट स्पेंड ऑन प्रॉपर प्लानिंग कैन सेव आवर 10 मिनट्स ऑफ एग्जीक्यूशन. अगर हम प्रॉपर प्लान करते हैं तो एग्जीक्यूशन में उतना ही हमको हेल्प हो जाता है. अगर हम 1 मिनट प्रॉपर प्लानिंग में स्पेंड करते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सेव 10 मिनट्स ऑफ एग्जीक्यूशन पार्ट. तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. इट ऑल्सो प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंसेस. ना सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग आपको प्रॉपर डायरेक्शन देगा, उसके साथ साथ आपको एक पुअर परफॉर्मेंस से भी बचा सकता है. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक पॉइंट बताऊंगा, दैट इज मेक योर लिस्ट नाइट बिफोर द वर्क अहेड. एक रात पहले आप प्लान कर लीजिए कि आपको कल क्या करना है, हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर टुमारो. कल आप कैसे अपना पूरा दिन बिताने वाले हो, आप कैसे स्पेंड करने वाले हो. उसके लिए एक प्रॉपर नोट डाउन, जॉट डाउन आप कर सकते हो कि कल मेरे लिए कौन कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है जो मुझे करने हैं. जिसके लिए कई लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं. कई लोग एक प्रॉपर चीट होते हैं जो अपने बेड के पास रखते हैं, जो एवरी नाइट दे प्लान. हमने कई अच्छे सक्सेसफुल पर्सन को सुना भी है और इनफैक्ट देखा भी है कि उन्होंने उनकी आदत होती है कि वो डेली बेसिस पे नोट डाउन करते हैं कि हमको कल कैसे स्पेंड करना है, कल कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको गो थ्रू करना है. मेक योर लिस्ट नाइट बिफोर. याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से. और दैट टू, अगर मैं इसको और प्रॉपरली इलैबोरेट करूं, तो लिस्ट जब आप बनाते हो तो मेक प्रॉपर लिस्ट. जब आप बनाते हो तो मेक प्रॉपर लिस्ट. आपके डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंगली आपकी लिस्ट डिफर करेगी. either you can make 2 or 3 लिस्ट, either you can make 1 लिस्ट जिसमें आप सब चीजें इंकलकेट करते हो. जैसे कि एग्जांपल बताऊं तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पर आप काम करते हो, जहां पर आपका बिजनेस है या जहां आप जॉब करते हो, वहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको कल करनी है, उसका एक प्रॉपर जॉब किया जा सकता है. उसके साथ साथ आपके पर्सनल लायबिलिटीज क्या, पर्सनल कौन सी चीजें आपको कल करनी है, उसका प्लानिंग आप एक दिन पहले कर सकते हो. कौन सी चीजें आपको कल करनी है, उसका प्लानिंग आप एक दिन पहले कर सकते हो. तो आप डिफरेंट लिस्ट बना सकते हो एज पर डिफरेंट पर्पसेस. और उसके साथ साथ आप और एक काम कर सकते हो, एक कंबाइंड लिस्ट बना दीजिए जिसमें आपके पर्सनल प्रोफेशनल सभी काम एक जगह पर आप प्रॉपर्ली पुटअप कर रहे हो. उसके लिए एक चीज रहेगा कि आप प्रॉपर टाइमिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टाइम मैनेजमेंट है, इसको हमको सिखाने वाले इस्लामी है. इस्लाम में कई जगह पर टाइम मैनेजमेंट का डिस्कशन किया गया है. इनफैक्ट कुरान में कई जगह पर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर डिस्कशन किया गया है. अगर हम देखते हैं इस्लाम के अंदर भी, तो प्रॉपर 5 टाइम्स प्रे, अल्लाह को याद करना 5 टाइम्स, बेसिकली मिनिमम 5 टाइम्स जो कहा गया है, वो भी एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया है. तो ये बहुत जरूरी है हम लोग के लिए कि प्रॉपर प्लानिंग करें और उसको प्रिवेंटिव मेजर्स ले, ताकि हमारा पुअर परफॉर्मेंस ना हो. और उसके साथ साथ हम ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टास्क हमारा भूल ना जाए जो हमको कल करना बहुत जरूरी था.
क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है टाइम मैनेजमेंट, दैट इज डिले। अगर एक इंपॉर्टेंट काम हमारा डिले हो जाएगा तो नेक्स्ट डे हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे हो जाएगा तो नेक्स्ट डे हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे उसको कवर अप करना। और कई बार हमने, जैसे इरफान भाई ने बहुत अच्छे से कहा कि कई लोग प्रॉपर प्लानिंग तो करते हैं ईयर एहेड का, या नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स मैं ये चीज स्टार्ट कर दूंगा, मगर उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो जितना प्लानिंग इंपॉर्टेंट रहेगा उसके साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेक श्योर टू डू लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मेक योर लिस्ट नाइट बिफोर कि क्या क्या मुझे काम करने हैं, और उसके साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना प्लानिंग पर देना है। कि अगर आपने कोई चीज प्लान तो कर दी, अगर वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो वो डिले लेके आ जाएगा, और डिले लाने के बाद नेक्स्ट डे और हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। तो वो ना हो करके आपको प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को एक पैरेलल बैलेंस करके चलना पड़ेगा, राइट। तो ये आप चीज कर सकते हो। प्लान योर डे इन एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस 6 P's: प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग, प्रिवेंट, पुअर परफॉर्मेंस। आप कुछ गलत चीजों से भी बच सकते हो, या आपकी कई बार हमने देखा है कि हम इमरजेंसी में कुछ काम कर लेते हैं और बाद में हमको रियलाइज होता है यार ये तो हमने गलत कर दिया, ये हमसे नहीं होना चाहिए था, ये काम हमने नहीं करना चाहिए था। तो वो भी प्रिवेंटिव मेजर ऑटोमेटिकली प्रॉपर प्लानिंग के अंदर आ जाएंगे। तो इसके 2-3 बेनिफिट्स एक साथ हो सकते हैं। एक, आपका काम प्रॉपरली होगा, ऑन टाइम होगा, आप पुअर परफॉर्मेंस से बच सकते हो, और गलत काम अगर नहीं करना चाहिए था उससे आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो। तो ये 6P का फॉर्मूला हम सबको याद रखना बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट में। दैट इज प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग, प्रिवेंट, पुअर परफॉर्मेंस, राइट। सो ओवर टू इरफान भाई। सुपर, जज़ाकल्लाह यमीन सर। एंड मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है in terms of to-do list, making notes, and in application में you can, because आज की डेट में हर कुछ चीजें मोबाइल पे होती है, तो you can download those applications and you can make your to-do list or you can make your planner in the mobile itself, जो आपको बताएगा, जिसमें आप टाइमलाइंस भी सेट कर सकते हो। and it is very important because this will help you to maintain your work life and personal life balance। अगर आपको कहीं कोई सोशल इवेंट्स भी अटेंड करना है विद द फैमिली, आपने अपने प्लानर में डाल दिया, सो यू नो कि ओके ये पर्टिकुलर टाइम में मुझे यहाँ जाना है, सो यू डोंट प्लान समथिंग एल्स ड्यूरिंग दैट टाइम। जज़ाकल्लाह यामीन सर। द नेक्स्ट important principle on time management is पेरेटो प्रिंसिपल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मिस्टर पेरेटो कौन है। ये मिस्टर पेरेटो जो है, ये he is an Italian economist, Wilfred Pareto, and इन्होंने ये स्टडी किया था कि he found that basically it was from the economy end when he noticed that 80% of the money is with 20% of the people, and which is true nowadays. We have seen everywhere 80% of the money is with 20% of the people. तो इन्होंने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया in different aspects, in the aspects of efforts and results, and wherein he noticed that probably people are spending more time on things which will have less impact. Okay, so ये हमने भी नोटिस किया है कि हम बहुत सारा टाइम छोटी छोटी चीजों में, जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, जो नहीं किया तो भी चलेगा, हम हमारा टाइम मोस्टली वहां पे स्पेंड करते हैं। सो पेरेटो रूल ये बोलता है कि we should spend 80% of our time, in fact 80% of our time, or sorry, 20% of our time to those things which have 80% of the results, right? So जो चीजें, we should spend our efforts on those things which give more results, and not on things which give less results. So that is Pareto principle. And ये मैंने बहुत बार देखा है लोगों को, when they make this to do list, they will always try to do things which are very easier. Okay, so avoid that. अगर आप अपना maximum time easy चीजें करने में spend करोगे, so result will not be big enough. So spend your time on things which are most difficult, most important. Okay, and when you do that, you will get more results. So that is the Pareto principle. And
what I would like to tell you is maybe when this webinar is over, आप भी कुछ एक होमवर्क ले लीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए of things which you want to do, okay, and then उसको classify करिए कि which is it that is most important, which will have more impact in your life, okay, classify that, and then you will see that 80% of the things are which doesn't impact your life, जो अगर आपने डिले भी किया या नहीं भी किया तो भी चलेगा, but 20% of the things has more impact. So once you do that kind of planning, you can spend more of your efforts on those things, okay. So that is the Pareto principle, and this applies to everything. It applies to, I would say, even for students, जो subjects या जो chapters ज्यादा important है, जिसकी marks, जिसकी weightages ज्यादा है, so you should spend your time more on that. जिस chapter में से hardly 5 or 10% of the marks questions आने वाले हैं, don't spend time on that, because that is just inefficient. So that is how students can correlate to it. For professionals, people who are working in the office, you have your goals and objectives. आपको एक गोल दिया हुआ है at the beginning of the year. So identify करिए कि कौन सी activities will complete 80% of your goals, and try and achieve those things first, rather than spending your time on things which will not give you more results. Okay. So I would request all of you to do this homework. In fact, आप एक और काम कर सकते हो. Maybe आपने लास्ट 3 महीने में क्या टास्क कंप्लीट किया है, जस्ट टू सेल्फ असेस, बिकॉज इंसान को खुद को जानना भी बहुत जरूरी है कि मेरी क्या वीकनेसेस है, राइट. सो आप एक काम करिए, आप ये सेशन होने के बाद में लास्ट 3 महीने में आपने जो अचीव किया है, आप उसकी एक लिस्टिंग बनाइए, एंड देन देखिए कि इसमें से कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी विच मेड एन इम्पैक्ट फॉर यू, एंड कौन सी चीजें लेस इंपॉर्टेंट थी. And if you are falling into that 80% bracket of spending more times into less important things, you know how to correct it. यामिन सर, आपका क्या कहना है 80-20 प्रिंसिपल के बारे में? माशाल्लाह इरफान भाई, ये अगर हम लोग सोचते हैं हमारे पास्ट, अगर मैं आप जब बता रहे थे, मैं लास्ट वीक को एनालाइज कर रहा था, तो इनफैक्ट मैं व्यूअर्स को भी कहूंगा कि आप आपके लास्ट वीक आपने कैसे स्पेंड किया है, उसको अगर आप गो थ्रू करते हो, तो जनरली ये देखा जाता है कि वी पुट 80% ऑफ द टाइम जो अनइम्पोर्टेंट चीज होती है, जो नॉट इम्पोर्टेंट चीज है, उसके ऊपर 20% रिजल्ट के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, जबकि हमारा 80% टाइम उसी चीज में लग रहा है जो 20% है या फिर बहुत कम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जबकि हमारा बहुत कम टाइम हम उस चीज पे लगा रहे हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे गोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कई बार देखा गया इरफान भाई के यंगस्टर्स इनफैक्ट या फिर आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये चीज बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि कई जगह पे हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट. हम एफर्ट्स ही नहीं लगाते जहां पर हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, मगर हमारे एफर्ट्स वहां होते हैं जहां से हमको रिजल्ट्स बहुत कम एक्सपेक्टेड है, राइट. तो बहुत सही प्रिंसिपल है और बहुत सही तरीके से आपने इरफान भाई एक्सप्लेन किया इस चीज को, राइट. सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इरफान भाई इसके साथ ये रहेगी कि कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, कि एक्चुअली हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर अहेड, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स. जब भी हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि हमारा 80% टाइम या 80% एफर्ट्स 20% इंपॉर्टेंट चीजों में लग रहा है, जबकि हमारा 20% एफर्ट सिर्फ लग रहा है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ के लिए 80%. ये कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि कई लोगों का गोल क्लियर नहीं होता है. तो यू हैव टू मेक अ गोल. One should always have a proper goal, जिसको हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल कहेंगे. एक कहते हैं हम लोग 10 years डाउन द लाइन मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ. जनरली इरफान भाई आपने और हमने ये चीज देखा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जनरली इंटरव्यू के टाइम पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद ने इंटरव्यू में सेशंस जब लिए थे उसमें भी ये बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया गया था, हम अपने को 5 years बाद कहाँ देखना चाहते हैं, जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है. इनफैक्ट हमारे लाइफ का भी गोल होना चाहिए कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, और उसको हम बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं. इसके लिए मैं आपको एक चीज बहुत बहुत अच्छे से बताऊंगा इरफान भाई, और आपके जरिए से अगर व्यूअर्स तक पहुंच सके ये बात, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग द थिंग्स, ये हमको सोचना बहुत जरूरी है.
क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका एक प्रॉपर बाइफर्केशन अगर आपको आ जाएगा, तो आप अपना 80% टाइम जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट चीजों में लगा सकते हो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको एक स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज गोल सेटिंग। व्हाट आर योर अल्टीमेट गोल्स, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स, और व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स जो लॉन्ग टर्म गोल्स के को रिलेट करते हैं। देखिए सिंपल एक चीज है, कई बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये चीज बताई जाती है या फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ये चीज पढ़ाया जाता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए और उसको बाइफरकेट करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। अगर हम कोई भी कंपनी को भी देखते हैं इनफैक्ट, तो हर कंपनी का एक विजन स्टेटमेंट होता है जो उनका अल्टीमेट गोल होता है, और उसको अटैच करने के लिए फिर मिशन स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, और मिशन स्टेटमेंट्स के लिए एक गोल बनाती है कंपनी, और वो ईयरली गोल होता है, फिर वो मंथली गोल होता है, फिर वो वीकली बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, और वो फिर एम्प्लॉयज के लिए डेली बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो हमको सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर आवर लॉन्ग टर्म गोल्स, और उसको अचीव करने के लिए हम कौन से शॉर्ट टर्म गोल्स पे वर्क करें और किस तरीके से उसको करें, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। जो पिछले स्लाइड्स में बताया जा रहा था, नोट डाउन कीजिए डेली लाइफ को, वन डे बिफोर आप क्या करना चाहते हो, उसको मैं और एलॉबरेट करूं और आगे लेके चलूं, तो आपको वीकली बेसिस पे भी एक गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे ये वीक में ये काम कंप्लीट करना है, ये मेरा टास्क कंप्लीट करना है, मेरे मंथ एंड तक मेरा ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। मुझे 3 मंथ्स में ये प्लानिंग करना है, 3 मंथ्स के बाद मुझे ये चीज अचीव करना है जो कि मेरे लॉन्ग टर्म में मुझे हेल्प करेगा। 6 मंथ्स में मुझे ये चीज अचीव करना है, ईयरली बेसिस पे मुझे ये चीज अचीव करना है। ईयर 2021 में इस ईयर में मुझे क्या चीज कंप्लीट करना है, 2022 के लिए मैंने क्या प्लानिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा प्लानिंग। प्लानिंग में आपको लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल दोनों को प्रॉपर्ली बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट डिफाइंड विथ योर लॉन्ग टर्म गोल, तो आप शॉर्ट टर्म गोल प्रॉपर नहीं बना पाओगे। कई बार हमने देखा इनफैक्ट इरफान भाई के स्टूडेंट्स के लाइफ में भी हमने देखा है कि मैं मंडे ऑनवर्ड्स ये चीज कर लूंगा। ये हमने एम्प्लॉयज को भी देखा है कि 1 तारीख से मैं बदल जाऊंगा, कमिंग फर्स्ट से मैं ये चीज स्टार्ट कर दूंगा। कई लोग सोचते हैं कि फर्स्ट ऑनवर्ड्स में जिम जाना चालू कर दूंगा, या कमिंग वीक से जिसको इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना है तो कमिंग वीक से या कमिंग मंडे से मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। तो ये कई कई बार हमने देखा है कि हम लॉन्ग टर्म बात तो करते हैं, शॉर्ट टर्म बात तो करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज नहीं आता है। अगर आप पूरी चीजें नोट डाउन प्रॉपर्ली कर रहे हो एंड इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल, और उसको आप शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकते हो या आपने प्रॉपर्ली किया हुआ है, तो आप फॉर श्योर लॉन्ग टर्म गोल आसानी से अचीव कर सकते हो। हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को ये चीज सोचने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गुड इन शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपके मेन गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आपने शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाए, तो आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। और इवन अ सिंगल डिसीजन जो आपने गलत लिया है, कई बार यू टर्न नहीं आता है। जैसे कि इरफान में कहा जाता है, अभी फॉर एग्जाम्पल 4:27 हो रहे हैं, 4:27 हो रहे हैं, ये 4:27 मेरे लाइफ में कभी रिपीट नहीं आने वाले। आपके 4:27 जो अभी हो रहे हैं आपके साथ कभी नहीं आने वाले। ये हमको देखने की जरूरत है कि हर मिनट हम जहाँ स्पेंड कर रहे हैं, इज इट यूजफुल? ये क्या मिनट हम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल के लिए बना है? क्या मैंने डेली बेसिस पे जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जीक्यूट ये मिनट को किया है या नहीं किया है? वीकली बेसिस पे मैंने जो प्लान किया उसके लिए मैंने इस आज के दिन के लिए मैंने क्या टास्क रखा था और मैंने क्या कंप्लीट किया है या नहीं किया है? याद रखिए, टाइम कभी वापस नहीं आने वाला, चाहे आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो। हमको इसको प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार टाइम चला जाता है तो उसके बाद रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं आता है। मैंने ये चीज करना चाहिए था, ये काफी बार हम लोग सोचते हैं। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, व्यूअर्स के साथ कई बार हुआ होगा, मेरे साथ इनफैक्ट कई बार हुआ होगा कि हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं हुए, और उसके बाद हम फ्यूचर में जाके रिग्रेट करते हैं, ये चीज मैंने नहीं करनी चाहिए थी, जो मेरा गलत डिसीजन था, और उसका इम्पैक्ट आज तक मेरे लाइफ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मेरे क्लासेस चलते हैं, मैं स्टूडेंट्स को 11 ईयर से टीचिंग करता हूँ, तो मैं एक कॉमन एग्जाम्पल हमेशा बताता हूँ स्टूडेंट्स को। वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने 10th के बाद एक गलत डिसीजन ले लिया आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, उसके बाद उसका यू टर्न काफी मुश्किल होता है, या फिर नहीं होता है, या फिर काफी ज्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत मुश्किल सामने करने पड़ते हैं यू टर्न आने के लिए, या फिर आपको ईयर वेस्ट करना पड़ता है, तो वो टाइम तो रिपीट नहीं आने वाला। इसलिए मेक श्योर कि आप प्रॉपर जो प्लानिंग कर रहे हो उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन भी होने चाहिए, और एग्जीक्यूशन इस तरीके से होने चाहिए कि वो आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को पैरेलली लेके चले।
आपको डे बाय डे जब आप प्लानिंग करते हो उसके बाद उसका एक कंप्लीट एनालिसिस पार्ट भी होना चाहिए कि मैंने ये प्लान किया था, क्या मैंने ये चीज अचीव की, इसमें क्या चीजें रह गई जो मुझे नेक्स्ट प्लानिंग में इंकलकेट करनी है और उसको मैनेज करना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग भी उस चीज को भी करना है और इसके साथ साथ जो मैंने छूट गया है उसको भी कवर अप करना है, जो कि काफी मुश्किल होता जाता है। हमने देखा है कि एग्जाम्स के टाइम पे भी स्टूडेंट्स कई बार कंप्लीट ईयर में लर्निंग नहीं करते, उसके बाद एट द एंड मोमेंट 11th आवर पे हमको रियलाइज होता है अब बहुत लेट हो गया, अब मुझे इतना सिलेबस कवर अप करना है, बहुत मुश्किल होगा। तो ये नहीं होने के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, उसका एक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन के बाद और एक नेक्स्ट पार्ट रहता है, दैट इज एनालिसिस पार्ट, के मैंने जो प्लानिंग किया था और जो मेरा एग्जीक्यूशन हुआ है क्या वो प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ है। इरफान भाई इसको बहुत अच्छे से एक चीज बता भी सकते हैं, जनरली सीए भी करते हैं राइट इरफान भाई, के हम लोग एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स बनाते हैं और कई बार ये एस्टिमेटेड बैलेंस शीट से चेक करते हैं कंपनीज के क्या हमने जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट्स बनाई है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुई या नहीं है, क्या डिफरेंशिएशन है हमारे प्लानिंग में और हमारे एक्चुअल एग्जीक्यूशंस में, और उसके रीजंस क्या थे वो जानना और उसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड एनालिसिस पार्ट थर्ड वर्ड और एक हमारी लिस्ट में ऐड हो गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट जी इरफान भाई। जज़ाकल्लाह यामीन सर, एब्सोल्युटली। एंड टाइम मैनेजमेंट में ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू बहुत जरूरी है, बिकॉज काफी टाइम हमने देखा है कि लोग बोलते हैं यार मेरा लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं हुआ, मेरा टाइम मैनेजमेंट बराबर से हो नहीं रहा है। तो इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आपने टाइम प्रॉपर्ली स्पेंड नहीं किया है उस चीजों के ऊपर। सो जज़ाकल्लाह यामीन सर। So over to the next method, A, B, C, D, E. Simple rule. A, B, C, D, E method. I hope आप नोट्स बना रहे हो। So जो भी आप टास्क लिस्ट बनाते हो उसको आप डिवाइड करिए या उसको कैटेगराइज करिए A, B, C, D, E के अंदर। अब A is what? A is something, some task that you should do, you must do. Okay? जिसके बगैर जो टास्क अगर वो नहीं करेंगे तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, you are studying in the school, for you clearing the board exam is very important, you must clear that, right? इसमें कोई there is no option available, then only you can go to the next level. Okay, so 10th is very important. So divide your task and identify certain tasks that you must do, जिसका high priority or highest priority. And the reason for that is once you identify A, you know कि आपको पहला टाइम स्पेंड करना है on A task. B is medium priority task, जिसे हम कहते हैं कि you should do, कि ये कर लेना चाहिए ताकि आपको आगे चल के आसानी हो चीजें करने में या आपके गोल्स बहुत जल्दी अचीव हो जाए। ओके, सो दैट इज B टास्क। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास A टास्क में भी बहुत सारी चीजें which I must do, then you categorize those activities as A1, A2, A3, A4, A5. बट ये कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है। सो A हो गया, B हो गया। C जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क होते हैं, जिसको बोलते हैं हम नाइस टू डू। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऑफिस में जा रहा हूँ एंड आई नीड टू डू सर्टेन प्रोजेक्ट्स and there are certain things which I should do which will have a result. There are certain things which अगर मैंने किया तो अच्छा दिखेगा, लोगों को ठीक लगेगा, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है बट ठीक लगने के लिए, प्लीजिंग करने के लिए, नाइस टू डू, which is low, which you should target, put it as a lowest priority task. Okay, so A is highest priority, must do, B is medium priority, should do, and C is नाइस टू डू, लोएस्ट प्रायोरिटी। अब डी है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब ये है कि ये टास्क आपको नहीं करना है, आपको किसी और से करवाना है। ये बहुत जरूरी है प्रोफेशनल्स के लिए एंड बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए। जनरली हम सोचते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये टास्क होगा नहीं। ओके, वी आर दैट आई वुड से फोकस्ड इन डूइंग थिंग्स ऑन आवर ओन। अगर आप खुद ही सब कुछ करने लगोगे तो आपका जो टाइम है विच इज लिमिटेड, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू डेलीगेट, एंड डेलीगेट में भी डेलीगेशन इज एन आर्ट। यू शुड नो किसे डेलीगेट करना है और कब डेलीगेट करना है।
और डेलीगेशन करने के टाइम पे आपको भी क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. ओके, सो डेलीगेट इज डी. एंड लास्ट ई. ई इज बेसिकली एलिमिनेट. मतलब आपने जो टास्क लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होगी जिसको नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने किया तो आपका टाइम स्पेंड होगा विच इज वेरी लिमिटेड, विच इज वेरी प्रेशियस, विच इज वेरी स्कैर्स. ओके, सो एलिमिनेट दोस टास्क. कभी कभी हम बोलते हैं ना कि चीजें डिले करो, तो ये उस टाइप के टास्क है जो चीजें एलिमिनेट करो, जो नहीं किया तो भी चलेगा. तो अपने टास्क लिस्ट को जब आप बनाओगे तो प्लीज ए बी सी डी ई में बाइफरकेट करिए एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करिए अंडरस्टैंड करने के लिए वो कौन से ई वाले टास्क है. क्योंकि काफी टाइम ये ई वाले टास्क जो है ये आपका टाइम ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम. वो बहुत जानना बहुत जरूरी है कि ई क्या है और डी क्या है. तभी आप ए वाले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क पे आप अपना टाइम स्पेंड कर पाओगे. एंड डेफिनेटली व्हेन यू डू दैट you will feel a sense of ownership, you will feel a sense of fulfillment that you have accomplished something, and that will motivate you to do better. Okay, so that is A B C D E method. Simple, very easy to follow, and I would request my viewers and students and everyone, ये वेबिनार होने के बाद में प्लीज आप अपने टास्क को नोट डाउन करिए एक पेपर में और आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टास्क डी और ई है, बिकॉज ये आपके टाइम ले रहे हैं. यामिन सर, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नहीं, परफेक्ट इरफान भाई. इरफान भाई, इसको हम अगर उस तरीके से रिलेट करें कि जो आप 80-20 रेशियो बता रहे थे, तो कई बार ये देखा गया इरफान भाई के 80% जो हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो डी और ई टास्क पे है, जबकि हमको रिजल्ट देने वाला 80% पार्ट तो ए और बी और सी था. मोस्टली ए एंड बी थे जो हमको रिजल्ट देने वाले हैं, बट टाइम जनरली हम लोग एफर्ट्स डी और ई पर ज्यादा लगा रहे थे. दैट इज व्हाट यू मीन इन 80-20 रेशियो, राइट? Absolutely, absolutely, Yamin sir. Right. And make use of this even in your, I would say, personal and social life also. I'm not saying कि सिर्फ आप अपने ऑफिस में या अपने स्टडीज में, इवन आपके सोशल कनेक्ट्स में try and see अगर कुछ चीजें जो है ई वाले एक्टिविटीज जिसपे हम आने वाले हैं. काफी लोग मोबाइल भी काफी तरीके से यूज करते हैं, जो some of them could be ई एक्टिविटीज. So थिंक करिए कि ये चीजें जरूरी है क्या मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में. व्हेन यू डू दैट यू विल बी मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट. वी गो टू द नेक्स्ट वन. यामिन सर, राइट. लॉ ऑफ 3, राइट. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जहां पर एलिमिनेशंस की बात आ रही थी या जहां डेलीगेशंस की बात आ रही थी, जिसको मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहते हैं गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द पीपल. ऐसे काम जो आप दूसरों से करवा सकते थे वो उनसे करवाइए, आप मेन कोर ए पार्ट पे फोकस कीजिए. उसी तरीके से अगर हम सोचते हैं व्हाट आर मोर इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अस, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ए पार्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्रूशियल है हमारे लाइफ में. बी पार्ट जो बहुत ज्यादा लेवल पे इंपॉर्टेंट है मगर ए जितने नहीं है, कंपेरेटिवली लेस है. तो व्हाट आर दोज थिंग्स, वो हमको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर मेन प्रायोरिटी जो हमको प्रॉपर्ली लिस्ट डाउन करना है. तो उसमें सबसे पहली चीज आती है व्हाट आर योर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और करियर गोल्स राइट नाउ. ये हर इंडिविजुअल को सोचना बहुत जरूरी है. अगर आप बिजनेस चला रहे हो या आपका करियर के बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो व्हाट आर योर करियर गोल्स, या आपके बिजनेस चला रहे हो तो आप व्हाट आर योर 3 बिजनेस गोल्स, आप ये नोट डाउन कीजिए. अनटिल एंड अनलेस आप इसको नोट डाउन नहीं करोगे यू वोंट रियलाइज कि हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं. इनफैक्ट मैंने कई बार देखा हमारे स्टूडेंट्स को जब पूछा जाता है कि आपके गोल्स क्या है तो वो ब्लैंक होते हैं. फिर वो कहते हैं मुझे आके, सर पहली बार रियलाइज हुआ कि हमारे लाइफ हम स्पेंड कहाँ कर रहे थे और कहाँ करने की जरूरत है. तो क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर योर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर योर बिजनेस, राइट, फॉर योर करियर, ये आप नोट डाउन कीजिए. और उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि हमको इसके ऊपर क्या काम करने की जरूरत है. बहुत बार हमको क्लियर आइडिया नहीं आती है. क्या होता है, हमारी लाइफ बस चले जा रही है चले जा रही है. एक पोएट ने बहुत अच्छे से वो चीज कही थी कि वक्त आ रहा है और वक्त जा रहा है, रियलाइज नहीं हो रहा है हम कहाँ मूव कर रहे हैं. तो अनटिल एंड अनलेस यू नोट डाउन तो आपको रियलाइज नहीं होगी. हमने कई बार ये सुना भी है, राइट, कि अगर हम खुद को फोन लगाते हैं तो हमारा फोन बिजी आता है. उसका रीजन है कि हमने खुद के लाइफ के लिए कभी टाइम निकाला ही नहीं है. तो आप एक काम कीजिए, आपके करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड एक बार बैठिए,
इट विल टेक टाइम, नो डाउट इट विल टेक टाइम। लगने दीजिए आपकी जिंदगी का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मगर आपके बिजनेस और करियर से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट गोल्स बनाइए। और जितना इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड करियर है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फैमिली और रिलेशनशिप्स भी होती है, राइट? तो आपके फैमिली और रिलेशनशिप के लिए आप गोल बनाइए कि आपको कैसे टाइम बिताना है, आप आपकी फैमिली के साथ कैसे टाइम बिता सकते हो, आपको कैसे स्पेंड करना है, आप आपके टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन। आप आपकी फैमिली को कैसे डिनोट कर सकते हो, आपके पेरेंट्स को आप कैसे टाइम दे सकते हो, आपके किड्स को आप कैसे टाइम दे सकते हो, वो आपको एक प्रॉपरली गोल सेटिंग करना होगा। और उससे इंपॉर्टेंट चीज ये भी एक साथ में आती है कि फाइनेंशियल गोल्स भी साथ में चलने चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल गोल्स माइंड में तो रखता है। हर एक की ख्वाहिशात बहुत बड़े, जैसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है ना, वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड। वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, कई चीजें हमको चाहिए। फाइनेंशियल गोल्स हमने कई सारे माइंड में बनाए हुए हैं, उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए प्रॉपर एक पाथ का और गोल सेटिंग आपको करने की जरूरत है। आपको डाउन द ईयर 1 साल बाद अपने इनकम को कहाँ ले जाना है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके हाइक कैसे मिलेंगे, आपको प्रॉपर टास्क जो दिए जा रहे हैं वो आपने प्रॉपर किया है कि नहीं, उस तरीके से आप फाइनेंशियल गोल्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कई लोगों को हमने देखा ये चीज के वो लोग बहुत छोटी सी चीजें मगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो फाइनेंशियल गोल्स के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे 3 साल बाद मेरे पेरेंट्स को हज के लिए भेजना है, तो एक वो बॉक्स बना देते हैं जिसको हम बचपन में मनी बॉक्स कहते थे। हम लोग डेली उसमें पैसा थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे ताकि हज का पैसा जमा हो जाए। इट इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल गोल जो आपने बनाया है। ये बहुत छोटी सी चीजें होती है मगर आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो हर एक पर्सन को एक फाइनेंशियल गोल्स बनाने की जरूरत है कि मुझे अभी आने वाले समय में कहाँ पैसा लग सकता है बड़ा अमाउंट, उसके लिए मैं पहले से गोल बना के रखूं, उसके लिए मैं पहले से प्लानिंग करके रखूं, उसके लिए मैं प्लानिंग को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करूं, एनालाइज करूं, ये भी जरूरी होता है। साथ ही साथ यू नेवर नो, सम अनसर्टेनिटी हमेशा होती है, तो आपके हेल्थ के रिलेटेड गोल्स भी आपको बनाने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है? लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हो, राइट? उसके लिए हेल्थ गोल्स आप बना सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा कहा जाता है, टाइम मैनेजमेंट में कहना भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का प्रॉपर बैलेंस। उसको आप कैसे करने वाले हो और आप किस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक क्लब करके एक पैरेलल लाइन पे भी लेके आ सकते हो, आप उसको कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो और उससे रिलेटेड क्या गोल्स बना सकते हो, ये बहुत करना जरूरी है। कई बार हमने देखा है अच्छे सक्सेसफुल पर्सन भी बाद में बहुत प्रॉब्लम में फंस गए क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम में आ गई। या कई बार हमने देखा कि कुछ पर्सन पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो प्रोफेशनली अपने आप को प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, और वहीं पर आता है इंपॉर्टेंट रोल टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, आपको प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करनी है, आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपने बिजनेस को भी टाइम देना है, आपको अपने स्टडीज पे भी टाइम देना है अगर इफ यू आर स्टूडेंट, आपको अपनी खुद के लर्निंग पर भी टाइम देना है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स पे भी टाइम देना है, आपको अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से 5 टाइम नमाज पढ़नी है मिनिमम, राइट? अपने कुछ दीनियत तरीके से हमको कुछ डेली बेसिस पे लर्निंग करनी चाहिए, उसके बेस पर्सपेक्टिव से भी हमको टाइम देना है। तो ये हर जगह पर आपका टाइम मैनेजमेंट रोल प्ले करेगा, राइट? नेक्स्ट इज 6th वन, 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल एंड कम्युनिटी गोल्स। देखिए जितना इंपॉर्टेंट अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जितनी इंपॉर्टेंट हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हमारी सोशल और कम्युनिटी के गोल्स भी होनी चाहिए। क्लियर? हर इंडिविजुअल ने अपने सोसाइटी के लिए कुछ देना चाहिए। जैसे अपने इस्लाम में बहुत अच्छे से बताया गया कि आपकी जितने सेविंग है उसमें आप जक़ात निकालिए, राइट? तो आजकल तो ये कहा जा रहा है, और जो बहुत जरूरी भी है, कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप अपना टाइम देके भी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हो। अपने सोसाइटी के वेलबींग के लिए आप अपने टाइम दे सकते हो। आप आपका प्लानिंग, आपका अगर सोच बहुत अच्छी है तो आप आपके लिए प्लानिंग बना के दे सकते हो। आप आपकी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको ह्यूमैनिटी वर्क कहा जाता है, उसके लिए काम कर सकते हो। आप ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है उनको अपने लेवल पर हेल्प करने की मदद कर सकते हो। तो जितना इंपॉर्टेंट एक पर्सन की लाइफ में पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, उतना ही इंपॉर्टेंट सोशल और कम्युनिटी का वेलबींग भी होता है। अगर आप देखते हो तो इसी के लिए जितने भी टीम उम्मीद के मेंबर्स हैं, वो खिदमत खल्क जिसको कहा जाता है, उसी के लिए टीम उम्मीद फॉर्म की गई थी। और इसी टाइप के हम लोग सेशंस लेते रहते हैं ताकि हमारे पास जो टीम उम्मीद के एक्सपर्ट बंदे, वो आप व्यूअर्स तक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सके, जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर सके, और ह्यूमैनिटी वर्क कर सके, और अपना टाइम देके लोगों को एक्चुअली जागरूक कर सके कि क्या चीजें सही है और क्या चीजों पर हमको फोकस करने की जरूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर योर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स और कंसर्न?
ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, हर इंडिविजुअल के लाइफ में सम और अदर प्रॉब्लम्स हमेशा अवेलेबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट में कि उसका कंसर्न कैसे, आप उसको कैसे हैंडल करने वाले हो। प्रॉब्लम सबके लाइफ में, कंसर्न सबके लाइफ में, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप उसको टाइम कितना देते हो अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर टाइम देना जरूरी है, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर टाइम देने की जरूरत है। देखो इधर मैं क्लियरिटी ऑफ थॉट्स बता दूं एक चीज, कि कई बार हमने देखा हुआ है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स गिनाते रहते हैं कि दिस आर माय प्रॉब्लम, दिस आर माय प्रॉब्लम्स, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस चलाने के लिए फंड्स नहीं है, कैपिटल नहीं है, मेरे पास सोशल नेटवर्किंग नहीं है, मैं कैसे काम करूं, ये चीजें प्रॉब्लम्स गिनाने वाले कई लोग होते हैं। और जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, वो अगर आप देखोगे ना, तो वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स नोट डाउन करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस भी नोट डाउन करते हैं कि ये मेरे प्रॉब्लम्स तो है, मगर ये मेरे सोल्यूशन है जिसके ऊपर से मैं प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ, इरेडिकेट कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ उसके ऊपर, और प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट में सिर्फ प्रॉब्लम जानना जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बनाना है, और सॉल्यूशन को टाइम मैनेजमेंट में लेके आना है कि ये मेरे प्रॉब्लम्स है, ये मेरे सॉल्यूशंस है, और मैं इस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करूंगा, राइट। और जैसे कि बिजनेस में अलग प्रॉब्लम्स होती है, देखो अगर जो हमारे 6 पॉइंट्स है, हर जगह पर अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे बिजनेस या करियर से रिलेटेड हमारे अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स में अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फाइनेंशियल्स में अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हेल्थ में अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी वर्क के लिए अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कीजिए कि टाइम आप उस चीज पर मत लगाइए कि प्रॉब्लम्स मेरे कौन से है वो गिनने में, जबकि आप टाइम उस चीज पर लगाइए कि आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कौन से हैं और वो प्रॉब्लम्स को कैसे हटा सकते हो, उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। और टाइम लगाने के बाद उसको एग्जीक्यूशन और एनालिसिस, जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो भी काम करना जरूरी है। और जैसे इरफान मैंने पिछले स्लाइड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, डी और ई पॉइंट, ऐसे काम जो आप दूसरों से करवा सकते हो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डेलीगेट कर लीजिए, राइट। वो प्रॉब्लम्स को आप दूसरों को हैंड ओवर कर दीजिए, वो सोल्यूशन निकाल के आपको दे देंगे। या ऐसे अननेसेसरी वर्क जो आप टाइम लगाते हो, उसके कंसर्न समझिए, उसको रेडिकेट कीजिए और उस पर टाइम नहीं लगाइए। यही टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज करके बैलेंस करके चले तो बहुत आसान है। अपने अलग अलग, जो मैं फर्स्ट पॉइंट कह रहा था कि हर पर्सन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने लिस्ट डाउन करनी चाहिए। तो बिजनेस के अलग लिस्ट डाउन हो सकती है, फैमिली रिलेशनशिप के लिए आप अलग लिस्ट डाउन कर सकते हो, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, सोशल के लिए आप अलग लिस्ट डाउन कर सकते हो, प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, उसका सोल्यूशन लिख सकते हो और उसके ऊपर फिर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर नाउ, राइट। जी इरफान भाई, Okay. इसमें अगर आप कुछ और लाइट्स पुट अप कर सके, आपके जो एक्सपीरियंसेस या थॉट्स होते हैं वो बहुत अच्छा होता है। जज़ाकल्लाह यामिन सर, जज़ाकल्लाह यामिन सर। आई थिंक ने आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड दैट इज व्हाई ये लॉ ऑफ थ्री है। लॉ ऑफ थ्री मतलब तीन चीजें। इट्स नॉट सेइंग हर बहुत सारी चीजों का चीज लिस्ट बनाओ, जस्ट थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आप आइडेंटिफाई करो, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे बराबर से। बिकॉज यू नो कि मेरी थ्री इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर मैंने अपना टाइम इन चीजों में स्पेंड किया, देन आई हैव स्पेंट इट इन अ राइट वे। सो लॉ ऑफ थ्री। देखिए, अब मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हम जो भी चीजें बता रहे हैं एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो आप इजीली आप उसको इंप्लीमेंट कर सको, वो हम बता रहे हैं। एंड इजी टू रिमेम्बर, 6P, 80-20, ABCDE, law of three, easy things to remember. So please, I hope you all are making notes of it. And I would request people, once you know this, please inform others also. Because अगर ये इंफॉर्मेशन आप अपने तक रखोगे तो सिर्फ आप बेनिफिट ले पाओगे, बट अगर आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करोगे, so others will also take benefit out of it. Let's go to the next slide, sir. Next slide is about preparation. Okay. So English में एक saying है that failing to prepare is preparing to, failing to plan is planning to fail. Okay. So if you don't prepare, if you don't plan, that means it's a clear cut recipe कि आप फेल होने वाले हो और आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट होने वाला है। ओके, सो ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए आई वुड से बेसिक चीजें भी बहुत जरूरी है, जैसे कि काफी टाइम स्टूडेंट्स के लिए
स्टूडेंट्स की लाइफ में वो होगा कि वो स्टडी करना चाहते हैं एंड देन जब वो स्टडी के लिए बैठते हैं तो चीजें क्लटर्ड है, कोई बुक्स नहीं मिल रही है, नोट्स नहीं मिल रहा है, रिवीजन पेपर्स नहीं मिल रहे, पेन पेपर कुछ चीजें सब बिखरी हुई है बिकॉज चीजें जगह पे रखी हुई नहीं है. सो यू स्पेंड लॉट ऑफ योर टाइम्स इन फाइंडिंग दोस थिंग्स. अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो सो आपको एक स्पेसिफिक फाइल्स नहीं मिल रही है और यू आर नॉट एबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स बिकॉज आपके खुद के जो टेबल है इट इज वेरी क्लस्टर्ड. काफी चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई पड़ी हुई है जो एक्चुअली आपका टाइम ले रही है, अनप्रोडक्टिव चीजें आपका टाइम ले रही है. सो प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक एवरीथिंग नीट एंड क्लीन. इनफैक्ट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब मैं मेरे ऑफिस में जाता हूँ तो माई डेस्क इज वेरी नीट एंड क्लीन. Whatever things I need to do is kept on one side. Okay, and then I can straight away focus on those things. Because अगर चीजें cluttered है, distraction होगा. Distraction मतलब आपका time waste होगा. So ये सब चीजें waste करेगी आपका time. So it is very important to keep things in a very proper, organized way. So that is why prepare thoroughly before you start. अगर हमने कोई चीज कोई एक्टिविटी करना है और हमने उसकी प्लानिंग ही नहीं की, हमने उस चीज को लेके चीजें बराबर से प्लान नहीं की है, या जो चीज के लिए जरूरी है वो चीज अचीव करने के लिए हमने वो आइडेंटिफाई नहीं की, तो दैट मीन्स विल स्पेंड आवर टाइम ऑन थिंग्स व्हिच आर नॉट इम्पोर्टेंट. एंड इस पॉइंट पे मैं हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा कि आफ्टर दिस वेबिनार and if you are working from office and then you happen to go to the office, go and see your desk whether it is properly organized or not. If not, then organize it because that will make you more efficient, that will save your time. And similarly for students also, ये वेबिनार के बाद आप अपने जो स्टडी टेबल है जहां आप अपने बुक्स रखते हो, जहां आप स्टडी करने के लिए बैठते हो, देखिए चीजें ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है तो उसको पहले ऑर्गेनाइज करिए. जैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे यू विल फील मच बेटर एंड यू विल बी एबल टू मेक मोर यूज ऑफ योर टाइम. टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंडा क्या है? मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम. सो फॉर दैट ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yamin sir, over to you. Right. Exactly. Organizing thing is most important thing in your life. उसी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अपग्रेड योर स्किल्स. राइट, नेवर स्टॉप लर्निंग. मैं उम्मीद के प्लेटफॉर्म से सभी को व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हमेशा लर्निंग पे ध्यान दीजिए, नई चीजें लर्न करते रहना. हमने कई ऐसे अच्छे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को देखा है जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं. इसीलिए बहुत जरूरी है ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड योर स्किल्स. कभी आप अपने लर्निंग को मत रोकिए. अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ तो कई लोग हमने देखा है कि ऐसे कुछ पर्सन्स हैं कि दे आर फीलिंग इनएडिक्वेट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या उनको लगता है मेरे अंदर कोई प्रॉपर एबिलिटीज नहीं है. उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि दे आर नॉट अपग्रेडिंग देयर स्किल्स. वो टाइम टू टाइम लर्निंग नहीं कर रहे हैं. देखिए हम सबको पता है एक चीज, क्या जो बच्चे होते हैं वो बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो फास्ट चीज को अडॉप्ट करते हैं, हर एक चीज को. तो ट्राई टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, नए स्किल सीखने की कोशिश करो. हमेशा कुछ नई चीजें सीखते रहेंगे. आपने बच्चों को देखा होगा कि कोई चीज नई आ जाती है हाथ में तो उसको गो थ्रू करते हैं, प्रॉपर्ली देखते हैं कि वो चीज है क्या, और बाद में वो ट्राई करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल कैसे होता है. राइट, तो क्या क्यूरियोसिटी होती है जो बच्चों में सीखने की, वही आपको भी करने की जरूरत है. ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड योर स्किल्स, क्योंकि हमेशा आजकल तो न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजिकल सेवी है. अगर हम देखते हैं तो डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आते रहते हैं. तो हमको भी अपने लाइफ को भी अपग्रेड करने की जरूरत है. अपग्रेड इन द सेंस ईच एंड एवरी फील्ड में. चाहे आप कोई बिजनेस में बिलोंग करते हो, बिजनेस आपका है तो बिजनेस को अपग्रेड करने की सोच आनी चाहिए. अगर आपकी कोई खुद का जॉब है तो जॉब में किस तरीके से हम अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं वो सोच आनी चाहिए. अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने आप को कैसे नए कोडिंग, अगर आप टेक्नोलॉजी से बिलीव करते हो, नए कोर्स कैसे सीख सकते हैं, नए कोडिंग कैसे सीख सकते हैं, या मैनेजमेंट से बिलोंग कर सकते हो तो नए थियरीज कैसे सीख सकते हैं. ये आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है, स्टूडेंट्स को भी. राइट, इनफैक्ट अगर ऐसे भी कोई व्यूअर्स है जो लेडीज है और होममेड है, अगर उनको भी हम देखते हैं तो वो भी अब टाइम टू टाइम अपने आप को आजकल अपडेट करते जा रहे हैं. तो हर एक पर्सन के लाइफ में बहुत जरूरी है कि अपडेट योर स्किल्स. Until and unless you are not updating yourself, you won't be able
to have good success, you won't be able to achieve your short term and long term goals. ये बहुत जरूरी होता है to upgrade your skills at each and every time, right? आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे प्रोफेशनल हो, आप अपने आप को हर चीज में अपडेट कीजिए, बट हाँ, मेक श्योर करो कि आप जिस चीज में अपडेट कर रहे हो दे आर वर्थ वाइल। यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आपको ये चीज सोचनी जरूरी रहेगी कि आपके वर्किंग गोल्स जो है उससे कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपकी सोच, आपकी जो सोच है, आपके गोल्स हैं, आप जो काम कर रहे हो वो आपके गोल से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो मगर इट इज ऑफ नो यूज फॉर योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, तो उसको सीख के कोई पॉइंट नहीं बनता है, जो हम टेक्नोलॉजी वाली स्लाइड्स में और अच्छे से इन डेप्थ बताएंगे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कई बार ये देखा गया कि हम अननेसेसरी टाइम लगाते हैं कुछ ऐसी चीजों पे जो काम की नहीं होती है। तो आपको अपग्रेड स्किल्स जो करना है, आपको लगता है यार हमने ये चीज नहीं सीखी, मगर आपको ये सोचना जरूरी होगा कि आपने जो नई चीज सीखी क्या वो वर्थवाइल थी, क्या वो आपके शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल के अंदर थी, क्या वो आपको काम आने वाली है, या अननेसेसरी हमने कोई चीज सीख तो ली बट इट इज ऑफ नो यूज, हमारे ना पर्सनल लाइफ में आ रही है, ना प्रोफेशनल लाइफ में आ रही है, ना हमारे बिजनेस फील्ड में आ रही है, ना हमारे एजुकेशन फील्ड में आ रही है। ऐसे कोई चीज नहीं सीख के ऐसा कोई बड़ा काम नहीं होने वाला है। तो टाइम ऐसे जगह पर लगाओ, अपने अपग्रेड करने पे तो लगाओ, मगर ऐसे अपग्रेडेशन पे लगाओ, ऐसे स्किल्स पे लगाओ जो आपको काम आने वाली है, राइट? तो आपको वो चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। अपडेटिंग इज अ गुड थिंग, बट अपडेट ऐसे होने चाहिए जिसमें नए फीचर्स आए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। अगर अपडेट तो हो रहा है मगर आपके नए फीचर्स नहीं आ रहे, तो आपने देखा होगा कई बार एप्लीकेशंस के नीचे लिखा होता है कि अपडेट आया मगर बग आ गया, वो पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव साइड्स पर आ गया, राइट? जो एप्लीकेशंस को लोग पसंद करते हैं, एप्लीकेशन लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपने लाइफ में भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपने कोई चीज अपडेट की है, पर अपडेट ऐसा हो गया जो आपके लाइफ के गोल से, पर्सनल प्रोफेशनल गोल से कोरिलेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे अपडेट मत करो। वो आपके डी और ई वाले पॉइंट रहेंगे जो इरफान भाई एबीसीडी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, राइट? जो एलिमिनेट करना है, ऐसे वर्क को अपडेट करके कोई पॉइंट नहीं बनता है। अपडेट ऐसे पॉइंट पे करो जो इरफान भाई बता रहे थे, ए वाले पॉइंट रहेंगे जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 80% 80-20 वाले रेशियो के अकॉर्डिंग बताऊं तो 80% आपके रिजल्ट ओरिएंटेड जो लाइफ की चीजें रहेगी उसमें अपडेट करने की कोशिश करो, रादर देन 20% जो अनइंपॉर्टेंट चीजें उसको अपडेट करने की कोशिश करो, राइट? तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर रिलेटेड टू अपग्रेड एंड योर स्किल्स, राइट? इरफान भाई, इसमें अगर आप कुछ पुट अप कर पाए लाइव्स। डेफिनेटली मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा विद द व्यूअर्स। बीइंग इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, काफी टाइम मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाता था फॉर आवर मैनेजमेंट एक्सेल के अंदर, एंड इट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम। देन मैंने अपने आप को अपग्रेड किया बाय अंडरस्टैंडिंग एक्सेल मच बेटर, कि एक्सेल के अंदर स्क्रिप्टिंग क्या होता है, एक्सेल के अंदर मैक्रोस किस तरीके से बिल्ड किए जाते हैं, एंड आई लर्न दोस थिंग्स, जिसकी वजह से रिपीटेड टास्क, इंस्टेड ऑफ मी डूइंग इट, मैंने मैक्रो बिल्ड कर दिया, and now macro is able to do it, that task, and it is doing fast. So इसके वजह से I am able to spend my time more on other things than on doing those repetitive activities, and मैं अपना time manage कर पा रहा हूँ. So upgrading skill is very important, and alhamdulillah SDI उम्मीद ने एक सेशन रखा था. In fact, we had kept workshop on Python training, we had kept workshop on एक्सेल. ये सब चीजें इसीलिए की ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सको, यू कैन अपस्किल योरसेल्फ एंड इवेंचुअली मैनेज योर टाइम इन अ मोर प्रोडक्टिव वे. इन बिटवीन मैंने स्लाइड्स थोड़ा बंद कर दिया था बिकॉज आई वाज सीइंग दैट द स्लाइड गॉट स्टक ऑन यूट्यूब, बट इंशाल्लाह आई थिंक नाउ इट इज गोइंग वेल. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स. जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, लिखा है व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने आप से सवाल करो. अगर आप अपने आप से पूछोगे कि मैं क्यों टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, ये क्या चीजें हैं जो मुझे होल्ड बैक कर रही है, ये क्या चीजें हैं कि मैं अपने गोल्स लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहा हूं, ये क्या चीजें हैं कि आज जो मैं हूं और जो मेरा ड्रीम था मैं उससे दूर हूं, ये क्या चीजें हैं. अगर आप अपने आप
के कंस्ट्रेंट्स, अपने आप की कमियां, अपने आप के वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे, then you will be able to mold it, you will be able to change it, you will be able to train yourself. आप अपने वीकनेस पे काम कर पाओगे, एंड जैसे आप अपने वीकनेस पे काम कर सकते हो, जैसे आप अपने वीकनेस पे काम करोगे, आप अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है टू हैव सेल्फ अवेयरनेस। काफी टाइम कॉर्पोरेट्स में, मैनेजमेंट में लोग पूछते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, राइट? एक एक बहुत जरूरी है व्यूअर्स ये जानना, स्टूडेंट्स ये जानना कि व्हाट आर माय वीकनेसेस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ में कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं वीक हूँ, जिसकी वजह से मैं मेरा टाइम प्रॉपरली स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं मेरे गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर प्रोफेशनल्स, what are the skills or what are the areas in which I am weak? I need to develop myself. ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे आप अपनी ये अवेयरनेस क्रिएट करोगे, you will be able to work on it and you will be able to manage things. For example, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट, मेरी बहुत बड़ी वीकनेस थी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, and many people are introvert. We don't want to communicate, and that is what is holding us back, right? मैं ये बंदे से किस तरीके से बात करूं? Should I speak it in English? Should I speak in English? Or my English is very weak. Should I do that? That is holding me back, right? So knowing that, once you know that, you can work on it, and that is what I have done in my life also. And many successful people, they are successful not because they are good in something. They are successful because they know what is their weakness and they work on their weakness. Okay. So for time management and for achieving your goals, you should know what is it that is holding you back. As you can see in the picture, एक chain है जो is you means you. एक chain, एक artificial chain है जो आपको hold back कर रही है. Once you know that, you will be able to manage your time, you will be able to achieve things, and you will be able to follow your dreams. Okay, so identify that. And again, एक और homework for all of you. I'm so sorry, मैं आपको काफी सारे activities दे रहा हूँ, but जैसा मैंने बताया था कि tips और tricks जब तक useful नहीं होंगे, जब तक आप उसको implement नहीं करोगे. So after this webinar, make list of important things that is holding you back from achieving your goals, which is wasting your time. Okay, so make a list of that, and once you make that, you know कि हमें उसको किस तरीके से टैकल करना है। यामीन सर, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे on this very important? I'm sure you must have also felt the same way. राइट, एग्जैक्टली इरफान भाई के कई ऐसी चीजें लाइफ में होती है इरफान भाई जो हमको बैकवर्ड पुश करती है, राइट, जो हमको खींचती है पीछे, जो हमको गोल तक नहीं पहुंचने देती है। तो हर एक व्यूअर को ये जानना जरूरी होगा। इनफैक्ट मेरे लाइफ में भी सेम चीज थी। ऐसे कुछ चीजें थी जो जिसके ऊपर मैंने ऐसे टाइम बिता दिया जो मैंने नहीं बिताना चाहिए था, देन रियलाइज किया और उसको हमने इम्प्रूव किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया और हम लोग उसको मूव ऑन कर रहे हैं आगे। तो हर एक के लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम आता है या ऐसी कुछ चीजें होती है जो आपको पीछे खींच रही है। आप उस पॉइंट को समझो, नोट डाउन करो। जैसे इरफान भाई ने बहुत अच्छा एक होमवर्क दिया आप सबको कि आप ऐसे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए जो आपको पीछे खींच रही है और उसको कैसे इंप्रूव करना है उसका भी एक आपको नोट डाउन करना होगा कि अब इस चीज को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। जैसे हम लोग स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करने हैं या लिखना जरूरी है। तो आपको अपने प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से पता है, आपको खुद को एनालाइज करो, जिसको हम कहते हैं ना लैंग्वेज मैनेजमेंट लैंग्वेज में स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो आपके कौन से वीकनेसेस है या आपके कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको पीछे खींच रहे हैं, उसको आप कैसे इरेडिकेट कर सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये दोनों चीजें आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी रहेगा और लाइफ में समझना बहुत जरूरी रहेगा ताकि आप अपना सही टाइम सही जगह पर लगा सको। जज़ाकल्लाह भाई। राइट, सो ये एक पॉइंट जो व्यूअर्स के मैं कमेंट्स देख रहा था यूट्यूब पे या फेसबुक पर, तो काफी लोगों ने इरफान भाई इसी चीज के ऊपर डिस्कशन किया या क्वेश्चन भी अराइज हुआ
कि मोबाइल से कैसे बचे, या मोबाइल जो हमारा टाइम ले लेता है उसको हम कैसे इरेडिकेट करें, किस तरीके से मोबाइल को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, या टाइम मैनेजमेंट हमको मोबाइल सिखाए तो हम मोबाइल को टाइम दे रहे हैं, वो हो चुका है आजकल के जनरेशन में, तो उसको कैसे हटा सकते हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी, इरफान भाई में कोशिश करेंगे कि ये स्लाइड्स पर आपके पूरे थॉट्स जो रहेंगे मोबाइल से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मैं आपको एक सिंपल से सेइंग कहूंगा जो बहुत फेमस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। आप उसको चलाओ, ना कि वो आपको चलाए। आप टेक्नोलॉजी को चलाओ, ना कि टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को चलाए। ये हर एक इंडिविजुअल को समझना बहुत जरूरी है, हर व्यूअर को समझना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा गया इरफान भाई, हमने ये चीज देखा है, इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स कहता है ये एनालिसिस के यूथ जो है जिसको हम जनरेशन वाई कहते हैं, आजकल की जनरेशन, जो पहले जनरेशन वाई कहते थे अब वायर्ड जनरेशन कहा जा रहा है। पता है आपको, क्योंकि उसका रीजन है कि नई जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं वायर से उलझ चुकी है। अगर आपका मोबाइल का चार्जिंग 10% तक आ जाता है तो पर्सन का माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। कई बार तो ये देखा गया कि पर्सन को गुस्सा आना चालू होता है अगर चार्जर नहीं मिल रहा है तो किस हद तक हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गए, जबकि टेक्नोलॉजी बनी तो इसलिए थी ताकि हमारी लाइफ को इजी कर सके। मैं आपको एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जिसका आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारी जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनकी जनरेशन है। हमारे दादा दादी के पास भी 24 घंटे थे, हमारे लाइफ में भी 24 घंटे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के पास भी 24 घंटे। मगर क्या हमने हमारे दादा दादी को या नाना नानी को कभी बोलते हुए ये सुना था कि हमारे पास टाइम नहीं है? जबकि उनके पास 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे। मगर आजकल हर एक पर्सन ये बोलता हुआ सुना जा रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लाइफ बहुत फास्ट चल रही है। जबकि 24 घंटे उनके पास भी थे, 24 घंटे हमारे पास भी है। जबकि मैं आपको एक डिफरेंशिएट बताता हूँ लाइफ में, उस टाइम पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट? आपकी लाइफ इतनी ईजी नहीं थी, जूस मशीन नहीं थे, जो होममेड वर्कर्स है, हमारे मम्मी जो घर पर काम करते हैं, घर पर जूस मशीन नहीं थे, हाथ से कूटा जाता था, राइट? व्हीकल्स नहीं थे, आजकल बुलेट ट्रेन आ चुकी है, राइट? आजकल एरोप्लेन्स आ चुके हैं, एक कोने से आप दुनिया के दूसरे कोने में बहुत फास्ट पहुंच सकते हो, राइट? बुलेट ट्रेन का जमाना आ गया, वायर्ड जनरेशन आ गया, आपका पूरा आपका जो पूरी दुनिया है आपके मोबाइल में आ चुकी है, क्लिक्स पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलने लगा है। इतनी लाइफ इजी होने के बावजूद आजकल की जनरेशन ये बोली हुई पाई जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कभी ये सेंटेंस नहीं कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। आज हम कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि लाइफ तो इतनी इजी हो चुकी है, हर एक चीज हमारे फिंगर टिप्स पे, बहुत सारी चीजें तो रिमोट कंट्रोल कर रहा है, रोबोटिक्स का जमाना आ चुका है, मगर हमारे पास टाइम नहीं है, राइट? ये क्यों हो रहा है, ये सोचने की हमको जरूरत है। और इसके ऊपर मैं आपको अगर एक चीज कहूं तो ये हो चुका है कि टेक्नोलॉजी को हमने सर्वेंट बनाने की जगह पर हमारा मास्टर बना दिया है। ये हमको समझने की जरूरत है, हमारे यंग जनरेशन को समझने की जरूरत है, अपनी पर्पस ऑफ लाइफ लाइफ समझने की जरूरत है, हमको क्यों अल्लाह ने ये लाइफ दी है, हमको किस तरीके से लाइफ बितानी है वो समझने की जरूरत है, रादर देन हमको मोबाइल में रहने की जरूरत है। आजकल बोलते हुए कभी शर्म आती है, मगर आजकल का यूथ कहाँ जा रहा है, कितने वेब सीरीज देखे जा रहे हैं, कितना एंटरटेनमेंट की तरफ फोकस किया जा रहा है, कितना सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो चुका है कि उसको रियल लाइफ क्या है वो ही पता नहीं, राइट? आजकल कहा यह जा रहा है कि आजकल की जो जनरेशन है वो वर्चुअल जनरेशन हो चुकी है, कि हम लोग सिर्फ अपने लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल इसके अंदर अपना जीना सीख चुके हैं, राइट? और आगे तो कहा जा रहा है नए टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं, तो अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ लाइफ जाएगी। मगर टेक्नोलॉजी का काम ये था कि हमारे लाइफ को इजी करे, जबकि हमारी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट बनते जा रही है। हमारे लिए अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम कम होता जा रहा है, हम टेक्नोलॉजी को उतना ज्यादा टाइम देते जा रहे हैं, राइट? अगर आपको टेक्नोलॉजी चलाना बुरी बात नहीं है, देखो टेक्नोलॉजी हर एक बंदा चलाता है, आप चलाते हो, मैं चलाता हूँ, इरफान भाई चलाते हैं, हर एक पर्सन चलाता है। इनफैक्ट ये सेशन ही टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, राइट? यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, फेसबुक पर लाइव हो रहा है। टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, ये प्रॉपर्ली समझ लो, बट टेक्नोलॉजी आप किस वे में इस्तेमाल करते हो वो समझना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को स्मूथ भी बना सकती है, इजियर भी बना सकती है, या डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना टाइम टेक्नोलॉजी को लगाते हो।
और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा है। वो कॉम्प्लेक्सिटीज में आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कितना सरल अपनी लाइफ को बना सकते हो, ये सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हो। मैं कितना भी बता दूं, इरफान भाई कितना भी बता दे, या टीम उम्मीद के कितने भी सेशंस हो जाए, अनटिल एंड अनलेस ये आप खुद नहीं सोचते, तो ये आपके माइंड में हमेशा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाता रहेगा। आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तो करना है, मगर उस वे में इस्तेमाल करना है जो आपके लाइफ को ग्रो कर सके, आपके लिए अपग्रेडेशन करके लेके आ सके, आपको 80% इंपॉर्टेंट चीजों में ला सके, या आपके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसके ऊपर फोकस करवा सके। उस तरीके से आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, राइट? क्योंकि देखा यही क्या टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है, यू हैव अ चॉइस, आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट अ डिस्ट्रैक्शन, राइट, और यू हैव टू एक्सेप्ट द फोकस फॉर योर गोल्स। टेक्नोलॉजी आपको दोनों तरफ बैलेंस करवा सकता है। टेक्नोलॉजी के पास वो पावर है कि आपको गोल अचीव करने में आपका टाइम बचा सकता है। टेक्नोलॉजी के पास वो भी पावर है कि आपके गोल्स को डिस्ट्रैक्ट करके रख दे, आप कभी अचीव नहीं कर पाओ, वहां पर भी आपको पहुंच सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। कई कमेंट्स भी इस क्वेश्चन के बारे में आ रहे हैं कि मोबाइल को कैसे हैंडल करें या कितना टाइम देना चाहिए। ये आपको समझना जरूरी है कि आप मोबाइल में कर क्या रहे हो। देखो, मोबाइल पेमेंट्स के लिए बहुत आसान हो चुका है आजकल, राइट? तो उसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस भी आ गए कि कई जगह पर हमने देखे कि हैकिंग्स हो रहे हैं। तो जितने प्रोज है उतने ही कौन से टेक्नोलॉजी के, आपको प्रोज को एक्सेप्ट करना है और कॉन्स को इरेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है, छोड़ देना है, ये आपको समझना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये टीम उम्मीद आपको इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहेगी कि डोंट बिकम एडिक्टेड टुवर्ड्स मोबाइल। आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो रही है। हम लोग के अगर हम घर पर देखते हैं तो बच्चे उठने के साथ मोबाइल देखना चालू कर देते हैं। ये जनरेशन हो चुकी है, रात में सोते समय मोबाइल हाथ में होता है, राइट? या कई लोग को हम देख रहे हैं कि सोशल साइट्स पे इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उनकी लाइफ ही उसके इर्द गिर्द हो गई, उसके इन एंड अराउंड घूम रहे हैं, बस सोशल साइट्स के इन एंड अराउंड घूम रहे हैं। हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स तो इतने हो गए, मगर हमको रियल लाइफ में पूछने के लिए कोई नहीं आना चाह रहा है। ये टेक्नोलॉजी हो गई है, तो आप किस तरीके इस्तेमाल करते हो? टाइम उतना ही दो टेक्नोलॉजी को जितना आपको बेनिफिट दे सके टेक्नोलॉजी। सिंपल और सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ, उतना ही टाइम टेक्नोलॉजी को देना चाहिए जितना टेक्नोलॉजी हमको बेनिफिट दे हमारे लाइफ को ग्रो करने में, हमारे चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल को वेलबींग करने में। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे ग्रुप से, हमारे फ्रेंड्स के, हमारे फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप्स बनाने में व्हाट्सएप पे, राइट? कनेक्शंस रहेंगे, मगर आप उसके अलावा उसको कितना टाइम दे रहे हो ये आपको समझना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि इट कैन बी अ वर्स्ट एनिमी एंड अ गुड फ्रेंड एज वेल। आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है मोबाइल, राइट, मगर आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन भी बन सकता है मोबाइल। आपको कई बार ये देखा गया कि फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स है, मगर एक बार तबीयत खराब हो जाती है तो कोई पूछने के लिए फोन नहीं कर रहा है। वो जमाना हम लोग देख रहे हैं, ये वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, मगर आप कितना पॉजिटिव इस्तेमाल करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, और उतना ही इस्तेमाल कीजिए जो आपको गोल सेटिंग में मदद करे, आपको 80% इंपॉर्टेंट चीजों में पहुंचाने में मदद करे, आपको जो ए और बी पॉइंट इरफान में बता रहे थे उसको हेल्प करे, वहां तक अचीव करने में हेल्प करे, या फिर जो मैं बता रहा था आपके लॉन्ग टर्म गोल उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड करो, शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने में मदद करे, उतनी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने करना चाहिए, राइट? तो आई होप आपके जो क्वेरीज आ रहे थे फेसबुक पर या यूट्यूब पर, आपके क्वेरीज के आंसर्स मिल चुके हैं उससे रिलेटेड, राइट? तो टेक्नोलॉजी बिकम द एनिमी व्हेन वी गिव इट एन ऑब्सेसिव नीड। वो आपकी नीड नहीं है, राइट? याद रखिए वो आपकी नीड नहीं है। आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपके बिजनेस गोल्स हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप टाइम दीजिए टेक्नोलॉजी को, मैं उतना ही दीजिए जो आपको ये सब चीजों में हेल्प करे, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आपको गोल सेटिंग में मदद करे, उतना ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। ओवर टू इरफान भाई। जज़ाकल्लाह यामीन सर, वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग, एंड आपने काफी बैलेंस्ड व्यू रखा एंड काफी चीजों को आपने कवर किया. Let me give some tips to our viewers के how you can make technology as your servant, and you can be master of it, and this will help you to save your time. First, number one important tip: notifications on your mobile. जितने भी एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड किए हैं, आपने देखा होगा कि मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन होता है, एनेबल्ड नोटिफिकेशंस, राइट? एंड हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेंड है एंड इस तरीके से ये सब टेक्नोलॉजी बनी हुई है कि जैसे हम कोई नोटिफिकेशन देखते
है, तो इवन इफ यू डोंट वांट टू सी गो इनटू डिटेल्स, आपका माइंड ब्रेन नेक्स्ट स्टेप यही करेगा, नेचुरली इट विल गो एंड चेक दैट नोटिफिकेशन, ओके, एंड देन यू विल स्पेंड योर टाइम. अगेन, limited time being spent on things which may or may not be very important, right? सारे notifications are not important. So इसीलिए choose wisely कि आपको किस application से notifications चाहिए और किस application से notifications नहीं चाहिए. That is number one. Number two, काफी टाइम मैंने जो मेरे colleagues हैं या people who work in the office and even businessmen, मैंने देखा है कि दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन ईमेल्स. जैसे ईमेल आया, आई वुड लाइक टू रीड इट, रिस्पॉन्ड टू इट. आई नो यू वांट टू बी वेरी एफिशिएंट एंड यू वांट टू टेल टू पीपल दैट मुझे रेस्पॉन्ड करना है, दैट मैं इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता हूँ. बट सोचिए, क्या जरूरी है हर ईमेल को इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करना? मे बी नॉट. एंड देयर मे बी सर्टेन ईमेल्स जो आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको फॉरवर्ड की गई हो, आपका कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. एंड ये इंफॉर्मेशन अगर आप अभी पढ़ रहे हो, विच विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट टू योर लाइफ, अगर आप इसे बाद में पढ़ोगे तो भी चलेगा. तो ये एक हैबिट बना लीजिए कि अगर मुझे ईमेल भी पढ़ना है या अगर मुझे किसी ईमेल को रेस्पॉन्ड ही करना है, तो मैं एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द डे मैं इसे डिवोट करूं, जहां पे मैं सिर्फ ईमेल का ही रेस्पॉन्ड करूंगा या मैं सिर्फ ईमेल ही पढ़ूंगा. इससे आप क्या कर पाओगे कि आप अपना जो यूजफुल टाइम, जो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हो, जैसे कि अगर हम रनिंग कर रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट? अगर आपको अपनी स्पीड, काम की स्पीड बढ़ानी है, उसमें कोई स्टॉपेज नहीं चाहिए, तो इस टाइप का ईमेल का डिस्ट्रैक्शन जो है, इस पे आप वर्क करिए. आप अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए, ठीक है? देन मैंने काफी टाइम देखा है लोगों को कि दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन व्हाट्सएप, लोगों के स्टेटस चेक करने में, राइट? अगेन, आई डोंट नो व्हाट बेनिफिट पीपल विल गेट आउट ऑफ इट, बट इट इज स्टिल वेस्ट ऑफ टाइम. If you can be master of the technology, there are options wherein you can mute statuses, or you can have fix some time during the day. Okay, इस टाइम पे ही मैं WhatsApp के messages पढ़ूंगा. There are a lot of WhatsApp groups which you can easily mute, जिसके notifications आपको नहीं देखने, आप mute कर दीजिए. So become a master of the technology rather than becoming a servant. So try and identify which are the things from technology perspective which is giving you distractions, which is deviating you from your main goal, जिसके वजह से आप जो स्पीड में जाने चाहिए वो स्पीड आपकी कम हो रही है, एंड देन उस पर आप वर्क करिए, ठीक है? तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ, एंड इफ यू फॉलो इट, इंशाल्लाह इट विल गिव यू आल्सो सम रिजल्ट्स. Over to the next slide, which is slice and dice. Slice and dice बेसिकली क्या है कि बेसिकली जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स काम हो, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क हो, या ऐसी चीज हो जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला हो, ठीक है, आप उसको स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करिए, स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स में डिवाइड करिए. स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स में डिवाइड करने के बाद में आप उसका एक टाइम सेट कर दीजिए कि इसका ये डेडलाइन है, एंड देन फोकस करिए एक टाइम पे एक ही काम कंप्लीट करने का. अगेन, मल्टीटास्किंग मत कीजिए, बहुत सारी चीजें एक साथ मत करिए. फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स. व्हेन यू स्लाइस एंड डाइस एंड वर्क ऑन स्मॉल थिंग्स, वन स्टेप एट अ टाइम, यू विल अचीव योर गोल्स. तब आप इजीली जो आपके जो बड़े गोल्स हैं उसकी तरफ आप उसको आप अचीव कर पाओगे. And also slicing and dicing is again very important, because when we look at things कि okay मुझे ये इतना सारा काम करना है, then आपका माइंड नेगेटिवली फ्रेम हो सकता है कि अरे नहीं करते हैं इसको, कल कर लेते हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाऊंगा. बट वही बड़ी चीज को अगर आप छोटी चीजों में डिवाइड करोगे तो योर माइंड विल वर्क फास्टर, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक मोर यूज ऑफ योर टाइम. Again, part of time management, slice and dice the task. जैसे आपने हमारा प्रेजेंटेशन देखा होगा, हमें आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, बट सभी चीजें एक स्लाइड में नहीं है. हमने इसको
स्टेप बाय स्टेप, वन एट अ टाइम हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड जिससे क्या है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए. सेम गोज विथ योर टाइम मैनेजमेंट. Okay, so I hope you can do that, and again follow this trick. Inshallah, you will get a lot of benefits. Yamin sir, anything from your end on this? जी, इरफान भाई बहुत अच्छे से आपने ये चीज को भी बताया कि पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी रहेगा कि until unless we don't slice and dice तो उसको फोकस करना काफी मुश्किल हो जाता है, राइट. तो वी ऑलमोस्ट डन फ्रॉम आवर साइड. पूरी कोशिश भी की गई कि जो कमेंट्स आ रहे थे या क्वेश्चंस आ रहे थे उसको हम कवर अप करें. और एट द एंड में लास्ट में समरी में ये कहना चाहूंगा, जो हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड थी तो इरफान भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सेट द टेबल. आपको एक पूरा टेबल चार्ट बनाना बहुत जरूरी है. व्हाट आर द थिंग्स, लिस्ट डाउन व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू, और उसके ऊपर फोकस करना जरूरी रहेगा. तो देन वी हैव डिस्कस द प्लान एडवांस, जिसमें हमने 6 पीस देखे थे, राइट. उसके बाद हमने 6 पीस देखे थे. आपको हर एक चीज को प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा. देन वी हैव समराइज 6 पीस, जिसमें आपको फॉर्मूला बताया गया था कि प्रॉपर प्लानिंग करने से आपके प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया. और लास्ट में उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने जो डिस्कस की दैट इज पेरेटो प्रिंसिपल. बहुत अच्छे से इरफान भाई ने वो 80-20 वाला रेशियो बताया है कि हम 80% टाइम 20% इंपॉर्टेंट काम में लगाते हैं और 20% काम 80% अनइम्पोर्टेंट काम में लगाते हैं. उसको हम वाइस वर्सा करना जरूरी रहेगा. शायद मैं इरफान भाई की ये वर्ड्स कभी नहीं भूलूंगा. बहुत अल्टीमेट चीज से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 80% टाइम 80% इंपॉर्टेंट कामों में लगना चाहिए और 20% काम एफर्ट्स 20% अनइम्पोर्टेंट कामों में लगना चाहिए, ताकि लाइफ प्रॉपर्ली ग्रो हो सके. और उसके बाद हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो क्या इश्यूज आ सकते हैं. एंड इरफान भाई ने नेक्स्ट चीज जो बताई थी ABCDE वाला रूल, ए बहुत इंपॉर्टेंट काम जो रहते हैं उसके ऊपर फोकस करना है. बी उससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट काम रहेंगे. सी जो नाइस टू डू थिंग्स रहेंगे, ये ABC पे फोकस करना है. और डी ऐसी चीजें जो डेलीगेट कर सकते हैं हम लोग कि हमारी जगह पर कोई और कर सकता है, जिसको गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द पीपल कहा जाता है मैनेजमेंट लैंग्वेज में, कि ऐसे काम जो आप दूसरों से करवा सकते हो उनसे करवाइए, आप अपना एफिशिएंट टाइम बचाओगे जो आप अच्छी जगह पर लगा सकते हो. दैट इज D एंड E जो है वो एलिमिनेट करने ऐसे अननेसेसरी काम जो हम कई बार वेस्टेज करते हैं, जो हम लोग आगे भी देख रहे थे मोबाइल के फंक्शंस में टेक्नोलॉजी के दरमियान, कि कई बार हमने नई जनरेशन को देखा कि अननेसेसरी टाइम बहुत सारे अननेसेसरी वर्क में लगाया जाता है. एट द एंड ऑफ द डे आप सोच के देखोगे तो आपको लगेगा मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, मेरी कोई लर्निंग नहीं हुई है. तो वो चीज को हमको समझना जरूर रहेगा. तो ये समरी हमारी 6 स्लाइड्स की थी. अगर मैं कहूँ इरफान भाई से, तो इरफान भाई अगर आप शॉर्ट में 6 स्लाइड्स को आगे एक्सप्लेन कर पाओगे तो इट वुड बी वेरी गुड. श्योर. सो अगेन समरी इसीलिए है बिकॉज ताकि आपके माइंड में वो रजिस्टर हो जाए. अगर कोई चीज बार बार बताई जाती है तो माइंड उसको रजिस्टर भी करता है. सो law of three is 3 important things that you want to do, you want to achieve. Make a note of it. 3 important things in personal, professional, wherever, in all your aspects of life. Make a note of it and spend your time on that. Prepare before you begin. Cluster table नहीं चाहिए. Set things well in advance. अगर आप अपना टेबल क्लीन एंड नीट देखोगे, अगर आपने प्लानिंग की हो, so you will not fail. But if you don't plan it, that means you're planning to fail. Okay, upgrade your skills. अपने and constraints both goes hand in hand. Identify करिए कि मुझ में क्या कमी है and upgrade करिए. Learning जो है एक important aspect है. Learning जो है इंसान को माँ की कोख से लेके कब्र तक इंसान लर्न करना चाहिए. Learning should never stop, right? So always upgrade yourself. देन टेक्नोलॉजी पे अल्हम्दुलिल्लाह यामीन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बनाना है, ना कि आप सर्वेंट हो टेक्नोलॉजी के. एंड टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज करिए कि आप उसके मास्टर हो. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं फॉर प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, टू मैनेज योर टाइम. मेक यूज ऑफ दोज एप्लीकेशंस, मेक यूज ऑफ दोज ऑप्शंस, एंड इंशाल्लाह यू विल बी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी. स्लाइस एंड डाइस, बड़े चीजों को करने से अच्छा उसको डिवाइड करिए छोटे छोटे पार्ट्स में. एंड स्लाइस एंड डाइस में मैं एक चीज भूल गया था जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक छोटा सा माइलस्टोन अचीव किया है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए, बिकॉज योर ब्रेन इज फंक्शनिंग इन द सेंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स. अगर आप रिवॉर्ड करोगे अपने आप को, सो योर ब्रेन विल डू इवन बेटर, राइट?
So rewarding is very important. So अगर आपने छोटा milestone achieve किया, reward yourself whatever way you want to reward yourself. Do that. Okay. And that's it. That's the summarization from our side. We are open for any questions that viewers have. We are live on Facebook, YouTube. Please आप अपने questions post करिए. Inshallah we'll try to ask. इंशाल्लाह पूरी कोशिश भी की गई कि दरमियान जो सेशंस के जो क्वेश्चंस आ रहे थे यूट्यूब पे या फेसबुक पर या जो पर्सनल मैसेजेस में कुछ लोग भेज रहे थे, हमने पूरी कोशिश की इरफान भाई और मैंने के साथ ही साथ क्वेश्चंस को हैंडल भी कर सकें, राइट। रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स टू फॉलो सोशल मीडिया ऑफ एसजीआई उम्मीद। आप ट्विटर पे देख सकते हो एसजीआई उम्मीद है, फेसबुक पर भी आर ऑलमोस्ट लाइव फॉर एवरी सेशंस। वी आर आल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर आल्सो देयर ऑन लिंक्डइन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। उसका रीजन यही है कि जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इट्स और ड्यूटी, हम लोग कहते हैं कि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम उम्मीद समझती है या टीम उम्मीद के जितने मेंबर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल्स को और दूसरों लोगों तक ये लिंक्स पहुंचाएं, ताकि ये जो यूट्यूब के वीडियोस है आप बाद में भी देख सकते हो और इसका इम्पोर्टेंट जो रहेगा आप आपके कलीग्स को शेयर कर सकते हो, ताकि जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो आम जनता तक पहुंच सके, राइट। तो जज़ाकल्लाह एवरीवन। मैं इरफान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट जो है उसके लिए एसजीआई चैनल के बारे में बताइए। जी इरफान भाई, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से। आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू. So on YouTube, Mohammad Ayub Khan, he is asking, which planning is most important for a student? Daily, weekly, monthly? What is most important for a student? कि डेली प्लान करिए, मंथली, वीकली, किस तरीके से प्लान करना चाहिए स्टूडेंट? देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम, जिसको मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहा जाता है टॉप टू बॉटम प्लानिंग, जिसमें आपको ईयरली प्लानिंग के पहले आपको लाइफ की प्लानिंग करनी है, देन आपको ईयरली प्लानिंग करनी है कि लाइफ की प्लानिंग को आप ईयरली प्लानिंग से कैसे मैच करोगे। ईयरली प्लानिंग के बाद आपको उसको और सेग्रीगेट करना होगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा मंथली प्लानिंग में, कि ये मंथ में आपने जो ईयरली प्लानिंग किया उसको मंथ में क्या क्या, कौन से मंथ में कौन सी चीज अचीव करनी है, और वो मंथ के प्लानिंग को और आपको बाइफरकेट करना है। उसको कहते हैं हम लोग वीकली बेसिस। मंथ में 4 या 5 संडेज आते हैं, तो वीकली बेसिस पे हर संडे को एनालाइज करेंगे कि मैंने जो मंथली प्लान किया उसका कितना 20 या 25 प्रोपोर्शन शेयर मैंने इस वीक में कंप्लीट किया या नहीं किया है, और उसको और बाइफरकेट कर सकते हैं हम लोग। जो वीकली है वो डेली बेसिस पर रहेगा, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डेली चार्ज बनेंगे। तो जो वीकली प्लान है उसको हम डेली में बाइफरकेट करेंगे और वीकली प्लान को 7 प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, और हम लोग देखेंगे, मेक श्योर करेंगे कि हमारे 7 डेज में प्रोपोर्शनेटली वीक वाला प्लान कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन केस कभी हम लोग डिले हो जाते हैं एक डे में, तो नेक्स्ट डे में उसको कैरी फॉरवर्ड करके वीकली प्लान को अकम्प्लिश करेंगे। इस तरीके आप डेली, फिर वीकली, फिर मंथली, ईयरली और लाइफ प्लान को पैरेलली एक साथ चला सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यामीन सर ने बताया कि आपने क्या अचीव किया है, नहीं किया, प्लीज उसको रेगुलरली आप रिव्यू करिए। बिकॉज प्लानिंग करने के बाद में अगर एक्शन लेते हो और उस एक्शन को अगर आप एनालाइज नहीं करते हो तो आप फ्यूचर में करेक्ट नहीं कर पाओगे अपने आप को। सो आप सेम मिस्टेक बार बार करोगे। एंड सेम चीज गोज विथ स्टूडेंट्स ऑल्सो। इफ यू आर मेकिंग योर टाइम टेबल एंड यू आर सीइंग दैट प्रॉब्ली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका नहीं पूरा हो रहा है एज पर द टाइम टेबल, मे बी शायद आपने कम टाइम डिवोट किया हो उस सब्जेक्ट को अपने टाइम टेबल में। सो प्लीज करेक्ट करिए, अपने आप को रिव्यू करिए। यामीन सर, एक क्वेश्चन आया है जो मैं लेना चाहूंगा। द क्वेश्चन इज फ्रॉम जाहिर खान। जाहिर खान जी पूछ रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत कैसे छोड़े? प्रोक्रास्टिनेशन इज बेसिकली ये जो काम ढकेलना होता है कि ये काम मैं आज करूँ, आज करने वाला था, चलो इसको मैं कल कर लूंगा, फिर कल के बाद परसों कर लूंगा, और वो कल और परसों कभी आता ही नहीं है। तो जाबिर खान, ये पूरा सेशन जो है आज का, टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग एल्स बट हाउ यू कैन अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। एंड जस्ट फॉर समराइजेशन पर्पस, ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना चाहोगे। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इरफान भाई, इस पे अगर मैं एक स्लाइड एक पुट अप कर दूं, हर चीज सम अप हो जाएगी एक सेंटेंस में। जाबिर भाई के आंसर्स आपके, मान लीजिए कि आपके बेड के सामने 4 बटन है, उसमें 3 बटन को आपको ऑन रखना है और 1 बटन को बंद रखना है। आपके बेड के सामने 4 स्विचेस है। पहले स्विच का नाम है फोकस,
सेकेंड स्विच का नाम है मोटिवेशन, थर्ड स्विच का नाम है डेडिकेशन। फोकस, मोटिवेशन, डेडिकेशन के स्विच हमेशा लाइफ में ऑन होनी चाहिए। और फोर्थ स्विच आपके बेड के सामने जो है वो एक्सक्यूज का है, एक्सक्यूज बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सब चीजें सुधर जाएगी, राइट। फोकस, मोटिवेशन, डेडिकेशन का बटन ऑन कीजिए, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जज़ाकल्लाह। Mashallah, mashallah, mashallah. Very, 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 very well said. There is a question from one of our viewers, Mohsin Khan. ABCDE वाला फॉर्मूला एक बार प्लीज एक्सप्लेन करिए। डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट आई वुड रिक्वेस्ट मोहसिन भाई, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो प्लीज सी दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। ABCD इज बेसिकली, आप अपने टास्क लिस्ट को बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, हर एक टास्क को कैटेगराइज करिए ABCDE में। A is something which you must do, जो नहीं करने पर पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। B, which is high priority. B is something which is medium priority, which you should do. C is nice to do, that is low priority. D वो टास्क है जो आप डेलीगेट कर सकते हो, और E वो टास्क है जो आप एलिमिनेट करना चाहोगे, जो आप नहीं करो, बिकॉज आपने वो किया, दैट मीन्स आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। Any other questions from our viewers? We are there. I think that's it. Let me go to the next slide. Alhamdulillah, Let fun me by just we have see if there finished is something on time as well. the 5:30 time chats. management. MashaAllah. We are good. Okay. So yeah. So request viewers, please follow us SDI. Up follow kariye on channel, and please subscribe to our channel. Let me end with a dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Jazakallah.